ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، جس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا گورنر سرکاری دورے پر گئے ہیں، وہ کل 2 بجے واپس آئیں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ گورنر نے حلف کے بارے میں کیا کہا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ گورنر نے استعفے کی منظوری کے لیے علی امین گنڈاپور کو بلایا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ گورنر نے رضامندی ظاہر کی ہے حلف برداری کے لیے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ گورنر کو آنے دیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ گورنر نے عامر جاوید کو دلائل کے لیے نامزد کیا ہے۔ عامر جاوید ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ گورنر کے لیے انتظار کریں، کل تک وہ آ جائیں تو سب ہو جائے گا۔ نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا وزیر اعلیٰ دفتر چلائے گا، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ تو تب ہوگا جب الیکشن نہیں ہوگا، یہاں تو الیکشن ہوا ہے۔ دیگر جماعتوں نے بھی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ عامر جاوید نے کہا کہ کل گورنر جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ منظور کریں اور حلف لیں۔ حکومت کے پاس جہاز بھی ہے اور اگر جلدی ہے تو جہاز بھیجیں، وہ رات کو آ جائیں گے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ کیا گورنر پبلک فلائٹ سے آتا ہے؟ عامر جاوید نے بتایا کہ جی، گورنر پبلک فلائٹ سے سفر کرتے ہیں۔ بعد میں عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب کے خلاف دائر درخواست کی سماعت وکیل کے عدم پیشی پر کل تک ملتوی کر دی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتخاب چیلنج کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست JUI کے صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر لطف الرحمان نے بیرسٹر یاسین رضا کی وساطت سے دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا، کیسے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ گورنر KPK نے مستعفی ہونے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو 15 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ قبل ازیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لطف الرحمان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی طور پر ہوا ہے، پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا، گورنر نے ان کو تصدیق کے لیے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو کیوں جلدی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا وزیر اعلیٰ کام کر سکتا ہے۔ اسپیکر کے کہنے پر ہم نے کاغذات جمع کیے لیکن اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ گورنر کا خط جب آیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا۔ کے میں مذہبی جماعت کے تشدد پسند مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا۔ تصادم میں پولیس افسر اور مذہبی جماعت کے کارکنوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 1 درجن سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات پیش آیا۔ ابتدائی طور پر انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی، تاہم مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسانا جاری رکھا۔ مظاہرین نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈوں، پیٹرول بموں سمیت دیگر تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ذرائع نے بتایا کہ متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا گیا۔ اسی چھینے گئے ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس اور پولیس کے ابتدائی معائنے کے مطابق فائرنگ میں استعمال گولیاں انہی سے چھینے گئے اسلحے کی تھیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے بڑے سانحے سے بچنے کی کوشش میں آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا، لیکن مظاہرین مزید مشتعل ہوئے اور منظم حملے کیے۔ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں اور گاڑیوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 40 سرکاری اور نجی گاڑیاں جلائی گئیں۔ متعدد دکانیں بھی نظر آتش کی گئیں۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق تصادم میں 3 TLP کارکن اور 1 راہگیر جاں بحق ہوئے، جبکہ 30 کے قریب شہری بھی زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے یونیورسٹی کی بس سمیت متعدد گاڑیاں اغوا کر کے احتجاج میں استعمال کی۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ عینی شاہدین کے مطابق بعض گاڑیاں عوام کو کچلنے کے لیے بھی چلائی گئیں۔ موقع پر موجود شر پسند عناصر نے پولیس پر پتھر، پیٹرول بم اور کیلوں والے ڈنڈوں سے منظم حملے کیے، جبکہ متعدد مقامات پر اندھا دھند فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس نے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا، تاہم مذہبی جماعت کے رہنما سعد رضوی اور دیگر چند رہنما موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مذہبی جماعت کے احتجاج پر قیادت اور کارکنان پر راولپنڈی اور فیصل آباد میں مقدمات درج کر لیے گئے۔ راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے رہنما سعد رضوی سمیت مقامی قیادت اور کارکنان پر مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔ روڈ بند کرنا، سیدھی فائرنگ کرنے سمیت مزاحمت کر کے ایمونیشن چھیننے کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات اقدام قتل، ڈکیتی اور سازش، مجرمانہ اور عوام کو اکسانے وغیرہ کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں سعد رضوی، قاری بلال سمیت 21 رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد اور 35 نامعلوم رکھا گیا۔
मुकदमा पुलिस मुद्दत में दर्ज किया गया कि मुलजिमान ने चक बेली रोड जठा हथियाल में चंद अफराद सड़क ब्लॉक करके टायर चलाकर एहतजाज किया गया। साद हुसैन रिजवी ने कॉल दे रखी थी कि लाहौर से इस्लामाबाद तक रोड ब्लॉक कर दें। पंजाब हुकूमत ने जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद करके दफ़ा 144 नाफिज कर रखी थी। मुकदमे के मतन के मुताबिक कारी बिलाल वगैरह 21 अहदेदारान और कारकुनान जो क्लाशनकोफ और दीगर असले समेत पेट्रोल बमों कीलों वाले डंडों से लैस थे। 35 दीगर नामालूम के हमरा आवाम को उकसा रहे थे। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP अमीर साद रिजवी का सुराग लगा लिया। पुलिस ज़राए का बताना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है। दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़राए का यह भी बताना है कि साद रिजवी के जख्मी होने के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जख्मी हैं तो उन्हें फ़ौरन खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर देना चाहिए ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। अपडेट करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान धमकी देते हैं और मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। उन्होंने कहा कि धमकाने के साथ मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगान तालिबान पहले धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात भी कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर किसी मुल्क से हमला होता है तो जवाब का हक मिल जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी पर कौन यकीन करेगा। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान की सरज़मीन मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की पनाह गाह है। शहरी आबादी को नहीं बल्कि सिर्फ दहशत गर्दों की पनाह गाहों को तबाह किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी विफाक की है, सूबों की नहीं। अफगान महाजिन के इनखला का मामला विफाकी है, इसे विफाक ही तय करेगा। जिनके पास दस्तवेज़ात नहीं, हमें इख्तियार हासिल है कि उनको वापस भिजवाएं। दूसरी जानिब PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय किए बगैर नहीं रह सकते। जब तक ये बातचीत नहीं करेंगे अमन नहीं हो सकता। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, अपोजिशन का ख्याल था कि हमारी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुए। अपोजिशन बचकाना बातें कर रही है, जमहूरी अमल आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा, हल्फ रोकने का कोई जवाब नहीं, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। सुहेल आफरीदी वजीर रह चुके हैं, तजुर्बेकार टीम उनके इर्द गिर्द मौजूद है। तजुर्बा बिलावल भुट्टो का क्या था जो अब सुहेल आफरीदी पर सवाल उठ रहे हैं। सलमान अकरम का कहना था कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के हवाले से थाना सादिकाबाद के केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में थाना सादिकाबाद में 26 नवंबर के घेराव जलाओ केस की समाअत जज अमजद अली शाह ने की। अदालत ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे में अलीमा खान समेत दीगर शरीक मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई आज मुकम्मल न हो सकी। अलीमा खान के वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की थी। बाद अज़ां अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। अल-कुद्स अल-शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, यही पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। गजा अमन कॉन्फ्रेंस एक तारीखी मोड़ साबित हो सकती है। गजा पर मुसल्लत नस्लकुशी रुकवाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। बरादर ममालिक के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मुसलसल मौक़िफ़ अपनाया। फ़लस्तीनियों की आज़ादी, इज़्ज़त और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी का वादा किया और उसे पूरा किया। पाकिस्तान सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत से मुतालिक एक और बयान सामने आ गया। मिस्र में गजा जंगबंदी मुआहदे पर 40 ममालिक के दस्तखत के बाद सदर ट्रंप ने इस अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब देखकर उन्हें अजीम रहनुमा करार दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमने भारत के साथ तैयारी गिराए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने आज एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। याद रहे कि सदर ट्रंप ने इससे कबल कई बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि उन्होंने इस मामले को तिजारत के जरिए हल किया। ताहम आज उन्होंने मिस्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें।
खबर आपको दें कि गजा जंग बंदी मुआहदे पर 40 ममालिक मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका ने दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए मुआहदे को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया। उन्होंने कहा, गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। ट्रंप ने कहा, आज तारीखी दिन है, गजा अमन मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमेरिकी सदर का कहना था कि ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे। गजा अमन मुआहिदे में मिस्र का किरदार अहम है। मुआहिदे के लिए कतरी अमीर की अनथक काविशें काबिल तहसीन हैं। उनका ये भी कहना था कि सदर उर्दवान का भी शुक्रिया, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। सदर उर्दवान बेहतरीन इंसान हैं, उनकी दोस्ती पर शुक्रगुजार हूँ। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं, हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि दस्तावेज में गजा से मुतालिक मुआहिदे के ज़ाब्तों को तशरीह शामिल है। गजा मुआहिदा एक जामी मुआहिदा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाएं। मिस्र में गजा अमन सरबराह इजलास में गजा जंग बंदी मुआहदे पर 40 ममालिक मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका ने दस्तखत कर दिए। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। बाद निज़ाम वज़ीर आज़म ने शर्म अल शेख में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अहम दिन है, अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। वो सबसे ज़्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि हम किसी के हक में फैसला दें तो खुश होते हैं, खिलाफ दें तो नाराज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना टैक्स नाफिज होगा, इसका फैसला गुज़िश्ता साल के असासों पर होता है। वकील फरूख नसीम ने जवाब दिया कि इनकम टैक्स में ये तसव्वुर है कि जैसे जैसे आमदन में इजाफा होगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि एफबीआर का माइंडसेट यही है कि आमदन के हिसाब से इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। 1979 ऑर्डिनेंस में टैक्स से मुतालिक 2 तसव्वुर थे, एक तशख़ीसी टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स होता है। तशख़ीसी टैक्स सालाना होता है और इनकम टैक्स गुज़िश्ता साल के मवाज़ने में नाफिज किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि तशख़ीसी टैक्स कब नाफिज होगा कब नहीं। फरूख नसीम ने कहा कि ऑर्डिनेंस में लिखा है कि तशख़ीस 1 साल बाद होगी। आप मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान आइन के मुहाफ़िज़ हैं। मैं खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ और वहाँ भी यही कहता रहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हारूनाबाद में मेंबर पंजाब बार काउंसिल के उम्मीदवार गुलाम नबी सिप्रा एडवोकेट पर कातिलाना हमले के बाद वकला बरादरी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। बार एसोसिएशन हारूनाबाद ने वाक़े के खिलाफ आज अदालती हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मजीद देखते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ सजाद वट्टू की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में मेंबर पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवार गुलाम नबी सिप्रा एडवोकेट पर कातिलाना हमले के बाद वकला बरादरी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। बार एसोसिएशन हारूनाबाद ने वाक़े के खिलाफ आज अदालती हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रात गुलाम नबी सिप्रा एडवोकेट इलेक्शन कैंपेन के बाद वापस घर आ रहे थे कि नाममालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। हमलावरों ने इलेक्शन कैंपेन बंद करने की धमकियां भी दी और तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश भी की, ताहम वो महफूज रहे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुँच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। वकला ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बार एसोसिएशन हारूनाबाद का कहना है कि वकला की जान को लाहक खतरात नाकाबिल कबूल है और अगर मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन सैफुल्लाह वट्टू के साथ सजाद वट्टू, NTA न्यूज़ हारूनाबाद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवात में पोलियो टीम पर फायरिंग के नतीजे में ड्यूटी पर तैनात लेवीज़ एहलकार अब्दुल कबीर शहीद हो गए। सवात की तहसील मुट्टा के दूर अफ्तादा इलाके अंजर तंगे बयाकिद में पोलियो टीम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। DPO सवात मोहम्मद उमर ने बताया कि फायरिंग के नतीजे में पोलियो ड्यूटी पर तैनात लेवीज़ एहलकार अब्दुल कबीर शहीद हुए। नाश को मुट्टा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO को बताना है कि पोलियो टीम में खवातीन भी शामिल थी जो फायरिंग के वाक़े में महफूज रहीं। जाए वक़ुआ पर बड़ी तादाद में पोलियो टीम पहुंच चुकी है, जबकि इलाके में अस्करियत पसंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें पंजाब भर में सब्जियों के लिए यकसां तर्ज की रेहड़ियाँ देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म दिया। हर बाजार के दाखिली रास्तों पर भी रेट लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत की। इजलास में प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तंजीम 9 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को स्ट्रेटेजिक प्लान पेश किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक एप्लीकेशन के जरिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतालिक तमाम डेटा मुयसर होगा। सब्जियों, दालों के स्टॉक, आमद, निर्ख और दीगर उमूर से मुतालिक तफसीली डेटा ऐप के जरिए डाउनलोड किया जाएगा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर पर गंदम की पिसाई और आटे की दस्तयाबी का जायजा भी लिया जाएगा। सब्जी मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। इजलास में पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसां तर्ज और डिज़ाइन की रेहड़ियां मुहैया करने का फैसला किया गया। पंजाब भर की 239 मरियम नवाज काश्तकार बाजार सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तफाक किया गया। मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म, शेड और शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाएंगी। फैसला किया गया कि मंडियों में सफाई बरकरार रखने के लिए मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में शोरश नहीं बल्कि अलहदगी की नाम नहाद तहरीकें हैं। मुल्क दुश्मन अनासे का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। कोयटा में 17वें नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि दुश्मन पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। बलूचिस्तान में गैर मुतवाज़न तरक्की का गलत तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाज़ फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। सरफराज बुगटी का कहना था कि जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। बलूचिस्तान में पहला फरारी कैंप 21 जून 2002 को कायम किया गया जिससे दहशतगर्दी को फरोग मिला। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले बढ़ाए गए। हुकूमत नौजवानों के गिले शिकवे सुनने के लिए जामियात और हर फोरम पर जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि बलूचिस्तान के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। अलहदगी पसंद भारत से खुश हैं मगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से फौज नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका जंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जिस अफसर ने काम करना है वो काम का है, जो नहीं करता वो घर जाए। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके शाह अल्लाह दिता और C13 के मुतासरीन की दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने CDA को मुतासरीन की दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने केस में शामिल CDA के एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला रुकवाने की मुतफर्रिक दरखास्त मुस्तरद करते हुए वकील की इस्तदा पर बरहमी का इजहार किया। वकील ने इस हवाले से इस्तदा की थी कि इस केस में शामिल एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला हो रहा है, हातमी फैसले तक इस अफसर का तबादला रोका जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आप अदालत से एक अफसर की सिफारिश कर रहे हैं। अदालत का ये काम नहीं कि किसी अफसर की सिफारिश करे। अदालत को किसी अफसर के लिए कोई हमदर्दी नहीं। क्यों ना मामला वज़ीर आज़म को भेजूं कि आपको कोर्ट में सिफारिश करवाना चाह रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर कोई डिप्यूटेशन पर जा रहा है तो जाने दें, ऐसी चीज़ों पर यहाँ मत बात करें। वो एक पब्लिक सर्वेंट है, किसी अफसर में कोई खसूसियत नहीं होती। जिसने काम करना है वो काम का है, जो नहीं करता वो घर जाए। आप अपने काम के लिए यहाँ आए हैं या किसी अफसर की नौकरी बचाने के लिए। अदालत ने CDA के डिप्टी कमिश्नर के तबादले की मुतफर्रिक दरखास्त मुस्तरद कर दी और CDA को 1 माह में 13 के मुतासरीन के लिए दरखास्तों पर फैसले की हिदायत करते हुए केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी है। कराची चिड़िया घर में मादा रीछ रानों के नाक़िस हालात और गफलत के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया है। अदालत ने KMC इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रानों को 2 रोज के अंदर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों के नाकाफी इंतजाम के हवाले से दरख्वास्त की समाअत हुई थी। समाअत के दौरान सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर कराची जू अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने KMC इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी हालत में रानों को कैसे रखा जा सकता है, हर काम के लिए अदालत के हुक्म का इंतजार क्यों करते हैं। दरख्वास्तदार ने मौका अख्तियार किया कि रानों को 7 बरस से एक ही जगह कैद रखा गया है और इसके सर में कीड़े पड़ चुके हैं। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने बताया कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड भालुओं के लिए महफूज पनाहगाह चला रहा है जहां रानों को मुंतकिल किया जा सकता है। ताम सीनियर डायरेक्टर कराची जू ने मौका अख्तियार किया कि हाल अदालत ने इनके बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी बयान की साइंसी बुनियाद क्या है, जिससे इकबाल गलोड़ों ने कम्प्रोमाइज दी है कि लोगों की तफरीह के लिए
जानवरों को कैद रखना जुल्म की इंतहा है और दुनिया भर में जानवरों को कुदरती माहौल में रखा जाता है। अदालत ने वाज़ेह हुक्म देते हुए कहा कि रानों को 2 रोज के अंदर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के महफूज पनाहगाह में मुंतकिल किया जाए और ज़ू इंतजामिया से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,62,636 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज मार्केट 158 पर बंद हुई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा NTA न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। अब बिल्कुल कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस वक्त मार्केट 1,62,000 की हद अबूर कर गई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था मार्केट 1,58,443 की हद अबूर करके बंद हो गई थी। आज जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ तो उतार चढ़ाव देखने में आया। अभी इस वक्त 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का जो है वो दौरान ट्रेडिंग इजाफा हो चुका है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई पे थी, 1,70,000 का लेवल नॉन स्टॉप चल रही थी। इसके बाद पिछला हफ्ता हमारा जो पूरा मंदी का गुजरा 5 दिन आपने देखा मुसलसल माइनस हो रही थी और कल के आगाज़ पे भी जो है वो दोबारा कल 5,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी देखी गई। तो इसके बाद इन्वेस्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई कि वो मार्केट में इन हो सके। तो इसकी वजह से आपने देखा कि आज जो है वो 5,000 से ज़ायद पॉइंट की का इजाफा देखा गया और आलमी और मुल्की सतह पे हालात जैसे बेहतर हुए तो आपने फ़ौरन स्टॉक मार्केट ने इसको रिकवर किया। इस हवाले से हमारी माहिर माशिया से बात उनका कहना था कि कारोबारी जो तबका उसका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि लाहौर में जो चल रही थी कशीदगी, उसके बायस से कारोबार कुछ हद तक जो है मुतासिर हुआ था। ताहम अब जो है वो कारोबार आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़ी की तरफ जा रहा है। सरमायाकारों का यही कहना है माहिर माशियात का कि सरमायाकार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो अपना सरमाया लगा रहे हैं और उनका एतमाद जो है बहाल हो रहा है। आने वाले दिनों में भी स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो कारोबार बढ़ेगा और इसमें जो पॉइंट्स है उसमें इजाफा मुतवक्के है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।